many to one. Bijective, subjective, injective, many to one. In the sequence of chapter 1, relation and function. Is it here? In the relation of function, we have discussed about the relation, is it? And the types of relation, empty relation. Second is one universal identity relation, universal relation, and mainly three types of relation over which the question generally asked in examination. The first one is what? Reflexive. Reflexive relation. The second is symmetric relation. The third is transitive relation. As their name is reflexive, symmetric, and transitive. Is it here? According to their name, the meaning if we'll access the meaning of these three words, then we can understand the meaning of that relations. And all the questions we have completed. Right now, the second function we have discussed here. So function is what? Function is a special relation. Function is a special relation in which what is the condition for a relation to be a function? कैसे एक relation function बन जाता है? Each member of the domain exactly domain set का हर एक member, every member, each member will have one and only one image in the set codomain. Codomain set will speak here. Is it here? What is the difficulty in this chapter? We have seen this. इसमें actually difficulty क्या होती है? Tell please. The difficulty in that here. इसमें difficulty ये होती है कि how to write down the answer of the question. The well manner or described answers to be written in it. Or understanding. If you can understand, if you understood here that the topic of that relation, then easily you can write here this. Not necessary to follow the all steps की steps क्या होना चाहिए, पहले एक tradition था कि step इसके बाद ये step इसके बाद, ऐसा नहीं है. अगर आपको समझ आया तो obviously you can give the justification of the solution. Is it here? Let's come on please. The second type we have discussed here the function. Function one first is into को क्या कहते हैं बताइए? one injective और second function is onto is called surjective. Is it okay? A function which is both one and onto is said to be bijective function. A function is said to be bijective. Or what is the trick I yesterday explained you that how to remember that the relation function is to be a bijective. कैसे आप पता करेंगे function bijective है? So you will see the domain set and you will see the codomain set. So domain set in every member has one and only one image. एक और एक ही image होगी. देखिए, every member will have the image, but have one and only one image. तो one and only one image और have image. ये logic क्या है? One and one means what? Obviously here it is that here. Like that it is x1. ये आपका ही member. So it will have one image here or another image here. तो क्या ये function है? This is not a function. A relation this is. Is it here? Now second is that here it is what? x2. ये हो गया x2. Got it? इसका इससे relation है और here it is this here. Again this cannot be here. But exactly. On the other hand we can give you this. There is what? It's x1 or here it is x2. They both can be related or associated with the same. वो दोनों एक से ही associated हो सकते हैं. Is it here? Then this is the relation. But it's 1 it is? Yes, it is 1. लेकिन ये many to 1 है. This is many to 1. Function तो है लेकिन ये many to 1 है. Is it here? क्या ये onto function है? तो sir onto, the definition of onto function is always given over that. Surjective is always given to keep in mind the members of the codomain. हमेशा हम onto को कोडोमेन के मेंबर की बेस पे डिसाइड करते हैं कि इनमें कोई भी मेंबर खाली ना हो, वेकेंट ना हो. इज इट हियर? जो कल का एक एग्जांपल था बेस्ट. इज इट हियर? इन द सीक्वेंस हियर फर्दर विल गो अहेड. द क्वेश्चन दैट आई गेव यू हियर इट इज. yesterday I have given the assignment of that here. Look that here. Question number 6, 7, 8 you have done here. Like that question number 8. ये हो सारे questions हो गए थे हमारे. Is it here? And I have given types of function also we have solved. Sorry. फंक्शन को आपने डिस्क्राइब कर दिया था. आप डोमेन रिलेशंस क्लियर है आपको? डोमेन एंड रिलेशन इन प्रीवियस क्लास इन 11th यू स्टडीड अबाउट द डोमेन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वी हैव डिस्कस. आइडेंटिटी फंक्शन याद करिए थोड़े से कुछ फंक्शंस. आइडेंटिटी फंक्शन, हाँ गो ऑन दैट हियर. लीनियर फंक्शंस. लीनियर फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस और सिग्नम फंक्शन. सिग्नम नहीं कहता इसको, साइनम फंक्शन कहते हैं. सिग्नम यू कैन स्पीक हियर. ओके, सिग्नम फंक्शन एंड
Go on that. Greatest integer. Greatest integer function is or what? Trigonometric function, exponential function, logarithmic function. इतने सारे functions हमने discuss किए थे. Is it here? और इन सब का domain, the domains of all these functions and the range of these functions. Is it here? तो range होता क्या है? तो range वो set होता है. तो set of all those values of image. वो सारे image का set. वो सारे image का set जिनके लिए domain define है. और domain क्या होता है? Domain is the set of all those x. Suppose that function of x is, जैसे ये function of x है. This is the function of x. Is it here? So function of x is here. What? ये function of x है आपका. This is the function of x. If this is function of x, clear? So there are some x. कुछ ऐसे x हम लेंगे जिनके लिए it will not define here. तो इसको ऐसे समझते हैं. If the function of x is here, suppose that here x square and what next is? Here it is. We'll write down here that suppose under root x we are writing. So wait on please. Here it is 2 divided by x. This is a reciprocal function or a rational function. So you will see that in place of x, अगर x की place पर आप अगर आप और what type of function is this here? X is real. मतलब जितने भी functions of 11-12 में पढ़ते हैं वो most of या almost all functions are real function. वो सारे real function होते हैं. तो that's we called here real valued function. उन्हीं को कहते हैं real valued function. A real function is also be said here this. Is it? So in place of x if you will write x, अगर हम x के place पे क्या रखेंगे? 0. So obviously 2 by 0, what will happen 2 by 0? The 2 by 0 will become infinity. No. We'll speak कि ये function अब काम नहीं करेगा उसके लिए. The function is now become confused. अब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ compatibility incompatibility होती है कि कोई मशीनरी हमने दूसरे नंबर्स का या अलग मार्क का या अलग ब्रांड का कोई चीज में डाल दिया और वो उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं कर रहा, फंक्शन इज नॉट वर्किंग इन दैट. तो जिस x के लिए जिस डोमेन वैल्यूज के लिए फंक्शन काम ना करे, when the function does not work for those values of domain, हम कहते हैं कि वो values they will not be called the, वो डोमेन में नहीं आएंगे उसकी फंक्शन की. इज इट हियर? तो फंक्शन रिलेशन में वरी करने के लिए, ठीक है, यू मस्ट नो दिस हियर दैट. ओके, लेट्स कम ऑन. ये क्वेश्चंस कल हमने आपको असाइनमेंट में दिया था. इज इट? आई होप यू हैव डन हियर. किसी ने इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है. इज इट हियर? क्वेश्चन नंबर 5. डू यू वांट टू नो? सो शो दैट द साइनम फंक्शन f on r. तो हम सिग्नम जो फंक्शन दे रहे हैं वो सिग्नम फंक्शन किस पे दे रहे हैं? आप रियल पे दे रहे हैं. सो हाउ विल यू राइट डाउन द क्वेश्चन हियर दैट हियर? So here is about neither 1 nor onto. So you will write just here signum function. Is it here? Neither 1 nor onto. How will we solve that here? इसको simplify कैसे करेंगे आप? बहुत आसान है. Is it here? So the method of writing solution. Since function on R, इसे कहेंगे function on R. Is it here? And we are writing f such that ये f where from R to R. इसे पढ़ते हैं function on R. Where you will take the domain or domain of the function from the real set. आप real set से लेंगे उसको. कहाँ से लेंगे? Real set से लेंगे आप. Is it here? So function on R is given as, कैसे देते हैं बताइए please? Is given as, how to give in this? F of x is, what f of x here? F of x is, tell please. आप देंगे 1, why for that? कि x is greater than 0 के लिए. For all positive number, if you will put the value of x, जितनी भी values रखेंगे, इसको समझिए please. For all those domain which are greater than 0, number line याद है? Do you remember the number line? This is the 0, rightmost from your side, इस तरफ positive और this side negative. तो here 0. तो 0 से all values for domain, सारे domain के लिए, for all domains, it will give you 0. No, it will give you 1. So clearly appearing that you will put the value here 1, you will put the value 1, 2, 3, 4, 5 for any value of x. This will give you 1. So we can say what? For many domain, it is giving only one image. So what type of function is it? Is this 1, 1? Is this 1, 1? Obviously it is many to 1. For 1 it will give you 1. Is it or not? Similarly, right side is there.
So obviously it is not. So a function which is not 1 1, obviously it will be many to 1. अगर कोई function है, if a function is existing, if the function is there and it's not 1 1 और वो 1 1 नहीं है, if it's not 1 1, then obviously it will be many to 1. So the theorem also we have described and derived yesterday कि अगर कोई function, if a function is not 1 1, then it will be many to 1. Is it? Now proceed it ahead. So f of x is 1 for x is greater than 0, and here x is 0 for x is 0 obviously. Is it here? And here it is what? Minus of 1 here for x is less than 0. So what is the definition of sinum function? या signum function what you speak here is. तो sinum function जो होता है इसकी definition है क्या? ऐसा function जो किसी भी डोमेन वैल्यूज के लिए या किस डोमेन की किसी भी वैल्यूज के लिए केवल 3 ही रेंज पर मूव करते रहता है. दिस हैव ओनली 3 इमेजेस, 3 पॉइंट्स ऑफ इमेज, -1, 0 and +1. This typical functions is called sinum function. Is it here? Phonetically कुछ signum कहते हैं, आप don't worry here, this बोलिए. Is it here? Sinum function. तो ये है sinum function. So we have to prove that कि what type of 1 1 और what type of injectivity और surjectivity इसकी चेक करनी है. You have to check here injectivity and surjectivity. So tell please what is the domain of x? Function का डोमेन क्या है? Exactly where x belongs to R. वैसे इससे देख के तो पता चल गया ना आपको? Is it here? So let us start here testing the what? Injectivity and surjectivity of function. So what do you understand by injectivity and surjectivity of sinum function? Is it here? Let us start injectivity and surjectivity of sinum function. So injectivity, this is called 1 1. You will prove this here 1 1. 1 1. 1 1 is called what here? Injectivity. The function is injective. Injectivity. मैंने फिर कह रहा हूँ आपसे, what is the experience, what is the difficulty with the student writing the solutions? कि आप लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? Why the students actually prefer the thick ones book है? मोटी मोटी बुक क्यों प्रेफर करते वो? Because we don't know how to write down the answer. आपको इंजेक्टिविटी टेस्ट करना है तो इंजेक्टिविटी कब फेल होगी? इंजेक्टिविटी तब फेल होगी जब हर एक डोमेन मतलब एक डोमेन है और उसकी अलग-अलग अलग-अलग रेंज होगी, इमेजेस होगी. हाँ, नहीं, एक डोमेन है और अलग-अलग इमेज हो तो फंक्शन ही नहीं है. Is it here? ऐसा बोलिए कि you will take that here, you will see that ये इक्वल है कि नहीं प्लीज? Yes. तो here you will write कि for injectivity f of x1 is equal to f of x2. Can we write this or not? Clearly appear हो रहा है. इसको किसके लिए ले रहे हैं? For, is it here? So here you will write for what here? You can suppose this as a y right now. So here you will write for all x1 और x2 belongs to, क्या बोलेंगे इसको? Yes, real. तो ये real positive राइट साइड के लिए, इसीलिए यही कह रहा ना, देखिए प्लीज फॉर दैट हियर राइट साइड के लिए फॉर आवर वैल्यू ग्रेटर देन रियल पॉजिटिव. सो व्हाट यू विल राइट फॉर दैट हियर? f1 कितना आएगा प्लीज टेल मी. f1 इज व्हाट? ऑब्वियसली 1 है और f2 इज व्हाट हियर? हियर इज आल्सो. तो यू कैन सपोज दैट हियर फॉर इमेज 1, बट हियर यू विल राइट व्हाट द फंक्शन इज हियर. तो ये भी 1 दे रहा है और ये भी, तो हाउ विल यू राइट दिस हियर? आप इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क हियर. तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. लेट x1, x2, x1 and x2 belongs to R पॉजिटिव, मतलब ऐसे दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं. सच दैट, इस तरह से, सच दैट व्हाट यू विल राइट हियर कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इक्वल नहीं है ना? इज इट हियर? इज इट नॉट? बट व्हाट इज दैट हियर? x1, ध्यान सुनिए, बट f of x1, what is f of x1? ये 1 आ रहा है, देखिए प्लीज. why f of x1? अब स्टूडेंट सोचेगा कि why we have written this f of x1 1, क्यों लिख दिया आपने? वो तो क्वेश्चन में कह रहा है ना. here you will see that here what the question saying is that for the right word preceding the domain right word के लिए वो इमेज 1 देगा चाहे कुछ भी हो. is it here? इसको more picturize या more in pictorial representation we can represent here. this is 0. Here the value we will take here domain greater than 0, and here we will take the domain less than 0. Is it here? So we can say here x is what? Negative,
and here x is what here? Positive. Positive. बोलो अब clear हुआ कि नहीं? X is negative and positive. So for all domain rightward to the zero, यही ना? For all domain rightward zero, the image point is +1. Plus one. अब clear हुआ? That's why x1 and x2 rightward we are taking, such that कि there are the two domain points we have taken. What are these domain points? x1 and x2. But f of x1, या फिर here you can write f of x1 is 1 and f of x2 is what coming here? ये भी 1 आएगा. Both will come here 1. So what you can say here? Therefore, what is that here? f of x1 is equal to what is that here? f of x2. आ गया कि नहीं? आपने कहा था कि इसके डोमेन पॉइंट्स इक्वल नहीं है, बट इमेज पॉइंट इक्वल होगा. इसका क्या मतलब है? वन डोमेन पॉइंट वन डोमेन पॉइंट, पर दोनों मिलके एक ही इमेज आएगी. एग्जैक्टली. तो ये फंक्शन 1 1 नहीं. इज इट हियर? सो व्हाट यू विल राइट हियर? देयरफॉर f इज व्हाट? f इज, या फिर ये कह सकते हैं व्हाट इज दैट हियर? व्हाट यू विल राइट हियर? दिस इज many to 1. This is many to 1. Is it here? So many to 1, a function which is not 1 1 is obviously it will be many to 1. बोलिए clear हुआ कि नहीं? Is it here? This is, या f is not 1 1. f is not 1. या फिर और भी, wait a minute, यहां तक तो लिख दिया आपने. Is it or not? Proceed करें आगे. Is it here? Similarly, what you will write similarly? For all x1 x2, या फिर here you will write here for x be less than 0. less than 0 के लिए ले लीजिए please. So what about for less than 0? less than 0 means here you will take let x1 and x2 belongs to what here? Negative real. Is it here? फिर वही कहानी, such that, for such that. Is it or not? So what you will write? x1 is not equal to x2. ये अलग अलग नेगेटिव नंबर्स हैं. But yeah, here f of x1, what will come f of x1? -1. And f of x2, what will come here? Minus of 1 again here. So you will write here, yeah, implies that f of x1 is equal to what? f of x2. Is it here? So what you will write here? Here f is not 1 1. ये 1 1 नहीं है. This is not 1 1. बोलो clear or not? For x is less than 0 and here you have written for x is greater than 0. Hope you understood. Is it? Now proceed ahead. The second we have to test here. Surjectivity we have to check. Surjectivity को कैसे चेक करेंगे? Second is yes. On to चेक करेंगे आप. On to, that is called surjectivity. So the check of surjectivity. How will you check the surjectivity? किसी फंक्शन के surjectivity को कैसे चेक करेंगे आप? So I stated yesterday that to check of the surjectivity is just you have to start from the, look that here, it's a domain or it's a range. For checking injectivity, just initiate from the domain set. और for the surjectivity check, start from the image. ना image set क्यों? कोडोमेन सेट. इमेज क्यों कहेंगे? रेंज विल नॉट स्पीक हियर. रेंज वो होता है जो डिफाइन हो चुके हैं x के लिए. तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्पीक हियर रेंज, विल स्पीक कोडोमेन. व्हेन वी स्पीक कोडोमेन, इट्स नॉट डिक्लेयर्ड दैट कि वो दिस इज द सेट ऑफ ऑल इमेज. मतलब ऐसे भी कुछ पॉइंट हैं जो इमेज नहीं है, मतलब इनकी कुछ प्री इमेज नहीं है. तो विल स्पीक कोडोमेन. So we'll start from codomain, and as the function is given on R, means domain is the set of real number, codomain is the set of real number. Is it here? So what you will write for that here? So on to check करेंगे आप. Is it here? So what you will write here? Let you will write down here fx is equal to what you will suppose? Y suppose कर लिया आपने. और here और y क्या है? Where y belongs to R. Y belongs to R. Is it here? Or y can be what here? Y belongs to R मतलब what is that? From 0 to leftward, 0 to rightward. All real numbers are here. But here y can be what here? Y क्या हो सकता है? अभी बताया ना, y can be 0. याद है कि नहीं हमको? It can be -1,
इट कैन बी 0 और इट कैन बी +1, इसके अलावा y कुछ नहीं हो सकता। इससे क्या क्लियर हुआ बताइए? तो यू विल राइट हियर देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसे कई y, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, ठीक है। दैट डज नॉट हैव, दैट डोंट हैव, दैट डू नॉट हैव क्या, दैट डू नॉट हैव प्री इमेज, that do not have pre-image in what? In R, मतलब कोडोमेन सेट, इसे कोडोमेन भी कह सकते हैं। Is it here? कोडोमेन, this is कोडोमेन, कोडोमेन, is it? So what? Y belongs to R that do not have pre-image. So there are some Y, जब कुछ ऐसे Y जिनकी pre-image नहीं है, मतलब वो बिना pre-image के हैं। Is it here? Got it? So the function is not. Therefore, what you will write here? F is not onto. Onto means what? Surjective or surjective. So here the function is not 1 1 and the function is not onto. Hence proved here. Hence what you will write? F is neither 1 1 nor what? Onto. Function neither 1 1 nor onto. This is the proof of Sinum function that is not neither 1 1 nor onto. You got it clearly? Is it or not? Now let's proceed here. The second question. Open that here. Sir, Do write here this. Same. Have a look at the question number 6. Question number 6. Look that here. Let A be the set of 1 2 3 and B the set of, 4 5 6 is it here? And F is what? There is a relationship given here, that a function is given here, but it's saying let F is collections of 1 4 2 5 3 6 be a function from A to B, show that F is 1 1. Tell please. 1 has 1 associated with 4, 2 associated with 5 and 3 associated with 6. Tell please, does here that exist हर एक every x के लिए, या every member of each member of domain has one and only one image. So is it giving the definitions of 1 1? Yes. Yes, of course. So how will you write this here? What you will write? तो आप लिखेंगे कैसे इसको? What is the way to write down here? आप ऐसा लिख लेंगे f of 1 is what? F of 1 is what? 4. Here f of 2 is what? 5. And f of 4 is what? Sorry, f of 3 is what? 6. Right now. So you will write since what? There exists, yeah, for each domain. Is it here? Obviously you can write for 1 1. Clear? There exists one and only one image for each x. Is it here? या for all members of A. A के सारे members के लिए ये function define है. Now proceed the next please. 7th question. Following cases state whether the functions is 1 1 onto or bijective. Justify your answer. We have to justify them. Following case state whether means we have to state it. अब आपको प्रूव नहीं करना है. प्रूव में तो स्लाइटली हिंट मिल जाती है. अब आपको डिटरमाइन करना है. Whether you have to find out the function is 1 1 or onto या फिर 1 1 and into both. So can I start? So you will see that here what type of function is this here. कैसा function है? पहचाना आपने? Linear function. ऐसी कोई वैल्यू है x की जिसके लिए काम नहीं करेगा ये? No sir. So what we can speak here? For all value of real x it is defined. और ऐसी कोई वैल्यू है जो x की जिसके लिए सेम I mean to say that here ऐसा कुछ मीन्स अब अगर x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? सपोज 0 you are putting, -1 और here you are putting that x is equal to +1, तो the value will come same here. ऐसा होगा? No, because it's a straight line curve. तो एनालिटिकल डेफिनेशंस या एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ग्राफ भी याद रखना है. इज अ स्ट्रेट लाइन.
इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कर्व हाउ दिस कम्स, कैसा आता है स्ट्रेट लाइन कर्व? ऑब्वियसली ऐसा कुछ आता है सर. तो हर एक x के लिए एक वैल्यू होती है, किसकी? y की. तो ये x और दिस इज व्हाट हियर f ऑफ x. ये इमेज लाइन है, दिस इज कॉल्ड रेंज और कोडोमेन, और ये क्या है? डोमेन लाइन है. तो इट्स अ डोमेन लाइन और इट्स अ रेंज लाइन. तो हर एक डोमेन के लिए वैल्यू डिफाइंड है यहाँ पर. इज इट योर वन एंड ओनली वन? तो फॉर एवरी और ईच डोमेन, सॉरी ईच मेंबर ऑफ डोमेन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इमेज. सो व्हाट, लीनियर फंक्शन देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है? वन वन है. अब हम इसकी डिस्क्राइब करते हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑन टू, इसकी सर्जेक्टिविटी. तो व्हाट यू विल राइट हियर, सर्जेक्टिविटी y इज इक्वल टू, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, योर सर्जेक्टिविटी इज डिफाइंड फ्रॉम द y साइड. सो यू विल सपोज दिस एज, इसे पूरा एक वैल्यू में ले लीजिए, सिंबल सिंगल 3 माइनस x, और पहले से डिस्क्राइब हो चुका है कि x बिलोंग्स टू व्हाट हियर? r. x बिलोंग्स टू r. सो हियर यू विल राइट x इज इक्वल टू 3 माइनस y. बोलो क्लियर नॉट? क्यों ऐसा लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस y? क्योंकि अब डिस्क्राइब करेंगे हम r के लिए. इज इट? अब सोचिए यहां पर y, सिंस फॉर ऑल y बी रियल. अगर यहां y को रियल नंबर लिखेंगे आप, तो ऐसी कोई y है वैल्यू जिसके लिए x रियल नहीं आ पाएगा? ऐसी कोई वैल्यू है? इज देयर सच वैल्यू? नो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है. इसका क्या मतलब? तो हियर यू विल राइट व्हाट, फॉर ऑल रियल्स, फॉर ऑल रियल्स क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट nx, या फिर उसकी प्री इमेज है. फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट, यहां भी लिख सकते हैं प्री इमेज इन व्हाट? r. लेकिन कंफ्यूज स्टूडेंट क्यों होता है कि यहां भी मैंने r लिख दिया और यहां भी मैंने r लिख दिया? स्टूडेंट कंफ्यूज होता है. क्यों बताइए? क्योंकि जब स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट स्टडी करता है, तो इट्स दिस हियर a सेट और हियर इट इज b सेट. तो व्हेन वी स्पीक a सेट से b, तो b से a वापस. बट अनफॉर्चुनेटली यहां रियल और ये भी रियल है, तो इसी से कंफ्यूज होता है कि सर इसमें भी r कह रहे हैं, इसमें भी r कह रहे हैं, a से b, b से a बताइए तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा. बट आवर फंक्शन हैज बीन गिवन हियर, इज इट ऑन रिलेटिव ऑन रियल नंबर सेट, रियल नंबर सेट पे दिया है इसने. इज इट क्लियरली? तो व्हाट यू विल राइट हियर, प्री इमेज इन r. देयरफॉर क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? यस, दिस इज वन वन एंड ऑन टू बोथ. दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन. गॉट इट क्लियरली? क्लियर है लिखने का तरीका? नाउ सेकंड दैट हियर, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज हियर? हाँ, अगर जैसे लाइक दैट हियर, यहां देखिए, वेट अ मिनट, y इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास में? y इज इक्वल टू व्हाट? 3 माइनस x स्क्वायर. समझिएगा, सपोज दैट लाइक इस तरह का एक्सप्रेशन है. इज इट हियर? सो व्हाट अबाउट द वन वननेस के बारे में डिस्कस कर चलती है. वन वननेस के बारे में, तो वन वननेस का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली हियर यू विल राइट f of x is equal to 1 plus x square. So you will see that here where x is what? Real number. x real है कि नहीं? तो you will see that here it is f of x, clearly appear हो रहा है. ये यहाँ क्या रखेंगे आप? अगर आप यहाँ पर एक नेगेटिव रियल रखते हैं तो पॉजिटिव एग्जैक्टली आप लिखेंगे लेस देन r, लेस देन जीरो. तो implies that x स्क्वायर क्या आएगा? बिलोंग्स टू पॉजिटिव, आएगा ना पॉजिटिव. तो वट एवर द नंबर विल कम हियर, तो f ऑफ x स्क्वायर एक वैल्यू आ जाएगी. इज इट? फिर आप यहाँ पर व्हाट यू विल टेक हियर दिस कि x इज ग्रेटर देन 0, implies that what you will write here, x square what belongs to positive, x belongs to positive real. फिर से what the value become 1 plus x square, same here. इसका क्या मतलब हुआ? दो पॉजिटिव नेगेटिव. अगर ये और अच्छे समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम. इन प्लेस ऑफ x यू टेक -1 और इन प्लेस ऑफ x यू विल टेक +1. तो -1 +1 के लिए क्या आएगा यहाँ पर? ऑलवेज 1 विल. और उसके लिए क्या आएगा? व्हाट वैल्यू ऑफ fx कम हियर दिस 2. तो -1 के लिए भी 2 आ रहा है और +1 के लिए भी 2 आ रहा है. तो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस हियर? दिस इज मेनी टू 1. और जो फंक्शन मेनी टू 1 है वो 1 1 है. इज इट हियर? क्या ऑन टू नेस चेक कर सकते हैं आप इसकी? व्हाट अबाउट द ऑन टू नेस? ऑन टू नेस कैसे चेक करेंगे इसकी? दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिविटी. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑन टू नेस.
So here you will write let onto surge activity. Question number 5 था नहीं, is it here? Surge activity. Surge activity. So since what is your function? f of x is equal to 1 plus x, where x belongs to R, real x, is it here? So you will suppose here let इसे y suppose कर लीजिए आप, is it? We have supposed here as y. Got it? So what the next you will write? Y minus 1 is equal to x square, or also you will write here under the root y minus 1 is equal to x square. इस फंक्शन को आप अच्छे से आइडेंटिफाई करिए. Is it or not? Try to look that here. The x square, sorry, here it is this x is here it is x. अब देखिए प्लीज, x is real obviously और under the root it is that here. तो y की कौन कौन सी वैल्यू है जो x को रियल बनाएंगी? ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि here x is क्या? x is defined. S is defined. किस y किसके लिए डिफाइन होगा? x is defined for हाँ y minus 1 greater than और इक्वल टू, मतलब 0 से यहां जो वैल्यू आएगी here it is 0, यहां से यहां तक वाली वैल्यू आएगी. इज इट हियर? यहां से यहां तक वाली वैल्यू है. इस तरफ वाली वैल्यू नहीं आएंगे नेगेटिव. क्यों नहीं आएंगी? बिकॉज अंडर द रूट नेगेटिव is not defined. So you will write here. तो यहां पर कुछ ऐसे y हैं जिनके लिए x रियल नहीं होगा, मतलब x will not be real. रियल नंबर होता ही नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा. अंडर द रूट नेगेटिव इज कॉम्प्लेक्स. सो हियर x is defined for y minus 1. तो हम यहां कह सकते हैं, तो डिफाइन की वैल्यू वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. हमें वो फाइंड करना है कि कुछ ऐसे हैं जिनके लिए डिफाइन नहीं है. इफ यू विल राइट हियर फॉर व्हाट वैल्यू x is defined, तो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन लेंथी हो जाएगी. तो विल सर्च सच वैल्यू विच फॉर विच द x इज नॉट डिफाइंड. ऐसी वैल्यू जिनके लिए x डिफाइंड नहीं. तो स्टार्ट करिए हम. तो x इज नॉट डिफाइंड. तो व्हाट यू विल राइट हियर? x इज क्या लिखेंगे? x इज नॉट डिफाइंड. x इज नॉट डिफाइंड किन के लिए? x इज नॉट डिफाइंड फॉर, बोलिए प्लीज किसके लिए डिफाइन है? x इज नॉट डिफाइंड फॉर y माइनस 1 इज क्या? y माइनस 1 लेस देन 0. अब ठीक है कि नहीं? अच्छा, उन सब के लिए y क्या होगा? देयरफॉर y माइनस, हियर यू विल राइट दैट इज y माइनस 1 लेस देन 0, मतलब y लेस देन 1. वेल क्लियर? मतलब लेस देन 1 मीन्स व्हाट? हियर इट इज दिस, हियर इट्स 1. तो y यहां से लेकर के यहां तक के लिए, मतलब कुछ ऐसे y हैं जिनके लिए फंक्शन काम नहीं करेगा. तो यू विल राइट हियर, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, फिर लिख दीजिए यहां पर देयर एग्जिस्ट, वो सिंबल याद है कि नहीं आपको? देयर एग्जिस्ट सम y, देयर एग्जिस्ट सम y, देयर एग्जिस्ट सम y belongs to R. Is it here? Belongs to R, for which there does not exist, there is not pre-image, where for which pre-image does not, okay, do not लिख सकते हैं, not exist, जिनकी प्री इमेज नहीं है. प्री इमेज नॉट एग्जिस्ट. ट्राई टू राइट द मोर शॉर्टेंड वे में आपको लिखना है इन सबको. इज इट हियर? तो वी हैव चेक्ड हियर द सर्जेक्टिविटी. तो सर्जेक्टिविटी इज जस्ट ओवर दैट हियर. इज इट और नॉट? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? आप सीख चुके हैं हाउ टू राइट डाउन. तो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दैट? ये लैंग्वेज. अब स्टूडेंट रिफ्रेशर से देखता है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद नो, you can write by your own language. आपको समझ आएगा तो they can write here. Okay, let's proceed the next.
चलिए लेट्स कम ऑन प्लीज. Similarly, this question can also be done. Question number 8. Let A be R, A and B set so that function from A cross B. मतलब डोमेन क्या लेंगे आप? ऑर्डर्ड पेयर. डोमेन क्या होगा आपका? ऑर्डर्ड पेयर. और रेंज क्या होगी उसकी बताइए? इमेज क्या होगी? उसका कम्यूटेटिव होगा. मतलब सपोज एन एग्जांपल कि ए बी, स्मॉल ए बी, यू आर टेकिंग डोमेन. मतलब ये लिख रहे हैं आप कि ए बी आपने क्या लिखा? एक डोमेन है. तो उसकी रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है? ये बी ए से रिलेटेड है. तो ए बी रिलेटेड बी ए. तो रिलेटेड मैंने आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फंक्शन है. इज इट हियर? तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस एफ. तो ए बी रिलेटेड विद दिस हियर. तो इज अ बाइजेक्टिव. तो चेक करिए कि वो बाइजेक्टिव है. हाउ विल यू चेक दिस हियर? कैन यू राइट द आंसर? लिख लेंगे आंसर? बताएं प्लीज. अरे लिख पाएंगे कि नहीं बताइए प्लीज. बन जाएगा? कैन यू सॉल्व दैट हियर? कैसे लिखेंगे? स्टार्ट राइटिंग दैट हियर. लिखो लेट अ फंक्शन फंक्शन, ये लाइन तो पूरी रिपीट करेंगे. फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए. ये फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज गिवन एज. कैसे देते हैं आप उसको बताइए? फंक्शन इज गिवन एज, डू राइट हियर दिस एफ ऑफ ए बी. अगर डोमेन ए बी होगा ऑर्डर पेयर में, इज इट हियर? तो रेंज क्या आएगी इसकी? बी आएगी. क्या आएगी? बी आएगी. इज इट और नॉट? तो स्टार्ट करो सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी. तो चेक यार सर्जेक्टिविटी. इंजेक्टिव. इंजेक्टिव कैसे चेक करेंगे? यू विल सपोज योर लेट ए कॉमा बी. ये दो ले लिया आपने. व्हाट यू हैव टेकन? बी अ रियल नंबर. एक रियल नंबर है ना? सच दैट इसका एक ए बी बना लिया ऑर्डर पेयर. या फिर हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि इतना डिटेल में क्यों लिखने लेंगे? आपको क्लियर हो रहा है कि उसका जो डोमेन है वो क्या लेना? ए और बी लेना है आपको. इज इट? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. क्या लेना आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो यू विल राइट हियर द ए बी. इज इट हियर? ए बी बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करता है? रियल में बिलोंग करता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट है. इज इट हियर? ये डोम ऑफ फंक्शन. इज इट हियर? such that what you have been given here, that such that f of a b is equal to what is coming here? फंक्शन कहता है कि b आएगा. क्या आएगा? b आएगा. इज इट हियर? अब आपको इंजेक्टिविटी चेक करना. तो इंजेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? तो यू विल चेक हियर दैट कि f ऑफ, यू विल राइट डाउन हियर f ऑफ x1. ये ऐसा लॉजिक है इसका. तो द टू नंबर्स यू कैन टेक हियर. दैट टू नंबर्स मीन्स व्हाट? टू नंबर्स का मतलब क्या होता है? देखिए ए बी के लिए ये आता है. एक मिनट रोकते हैं थोड़ी देर के लिए. अलग से आई एम टेलिंग दिस. आप ऐसा लिखते हैं ना f ऑफ x1 और f ऑफ x2, और इससे ये प्रूव कर देते हैं x1 इज इक्वल टू x2 कि अब अगर इमेज इक्वल तो डोमेन इक्वल, इमेज इक्वल तो उसकी प्री इमेज इक्वल. सो ईच x हैज वन एंड ओनली वन इमेज और हेंस इट इज 1 1. तो यहां पर इमेज इक्वल लेंगे आप. यू विल टेक इक्वल हियर. दैट इक्वल मींस व्हाट? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ, व्हाट यू विल राइट हियर? ये होगा f ऑफ x1 x2. ऐसा लिखिए ना, f ऑफ x1 x2 इक्वल इज इक्वल टू व्हाट हियर? x2 ना, x2 x1 क्यों लिखेंगे? अच्छे सोचिए थोड़ा सा. आप यहां लिखेंगे x3 x4. क्यों? समझना आप. आपका डोमेन x1 x2 x3 नहीं है. आपका डोमेन क्या है? ऑर्डर पेयर है. आप क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऑर्डर पेयर इज अ सिंगल एलिमेंट. इज इट हियर? तो एक ऑर्डर पेयर हो गया, एक ऑर्डर पेयर ही हो गया. आप क्लियर हुआ कि नहीं? सो इंप्लाइज दैट इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू विल राइट? जैसे ये ए बी था, इट्स बेटर दैट कि आप ए बी सी डी ले लीजिए. इज इट हियर? तो व्हाट यू विल राइट हियर? एफ ऑफ ए बी. तो क्या लिखेंगे आप इसको? ये चलिए ए बी लिख लिया मैंने, और हियर व्हाट आई विल राइट हियर? सी डी. ऐसा लिखा कि दो इक्वल है. सो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू विल राइट? इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? हियर यू विल राइट बी ए, और व्हाट यू विल राइट हियर? दिस यहां लिखेंगे आप डी सी. इज इट हियर?
तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हियर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे आप, यू विल पुट इनटू द ब्रैकेट हियर, इसे ब्रैकेट में रखना है आपको, इज इट, वो भी एक ऑर्डर पेयर आएगा, इज इट। तो समझिए आप प्लीज। अब मुझे बताइए टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, पढ़ा है 11th क्लास में? टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल का क्या मतलब होता है, इंप्लाइज दैट, तो इसका मतलब ये B इज इक्वल टू क्या होगा, D, B इज इक्वल टू D, हाँ, और A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C, दैट इज व्हाट हियर, एंड A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D और A इज इक्वल टू C। तो B इज इक्वल टू D, A इज इक्वल टू C का मतलब क्या हुआ, B इज इक्वल टू D और A इज इक्वल टू C, मतलब D ही B है और C ही A है, इज इट। तो आपने क्या प्रूव किया, व्हाट यू हैव प्रूव्ड हियर दिस, तो इंप्लाइज दैट आपने ये प्रूव कर दिया x1 और x2 इज इक्वल टू व्हाट यू हैव x3 एंड x4, ये प्रूव कर दिया कि नहीं आपने, एक ही चीज है। तो देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। Now proceed it here. Surjective. How will you prove the surjective? जब भी आप स्टडी करते हैं ना, ऑलवेज कॉपी लेके बैठें, इसीलिए क्योंकि लिसनिंग मोड जो होता है वो कंफर्टेबल जोन में पहुंचाता है आपको, लेकिन आप लिखते नहीं है, वेन यू राइट समथिंग एल्स, है ना, जैसे रिपीट करके भी आप मतलब रिकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं सपोज कर लीजिए, तो उसमें पॉज कर करके देखिए, समझिए, तो इससे आपका ज्यादा गेन होगा, इज इट हियर। सर्जेक्टिव, दैट्स कॉल ऑन टू। तो सर्जेक्टिव कहां से स्टार्ट करते हैं अपन, सर्जेक्टिव ऑलवेज स्टार्ट कोडोमेन से शुरू करते हैं, तो कोडोमेन और क्या है, बी ए, इज इट हियर। तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि ऐसे कुछ कोडोमेन्स मेंबर हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, ये बार प्रूव करना होता है, इज इट हियर। तो इस फंक्शन को लिखो प्लीज, सिंस एफ ऑफ ए बी फंक्शन, व्हाट इज एफ ऑफ ए बी फंक्शन, एफ ऑफ ए बी फंक्शन इज व्हाट, बी ए, f of ab function is ba, मतलब in place of domain अगर आप ab ordered pair if you put, so in place of that it will come just ba, वो ba आ जाता है, is it here, जहां where a comma b are what is this, ये रियल नंबर्स हैं, बोलो क्लियर और नॉट, क्या ये बात समझ आ गई, is it, so here you will write, आगे समझ में, तो आप ab you will just take here उसको ba कर देंगे, मतलब यू विल पुट हियर ए बी, जस्ट यू विल राइट डाउन बी ए, तो बी ए का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम्यूटेटिव कर सकते हैं ना, ऑर्डर पेयर ए टू बी, बी टू ए कर देंगे आप। तो ऐसा कोई मतलब रियल नंबर में ऐसी कोई वो है कि वो उनका कम्यूटेटिव नहीं कर सकते, मतलब ए बी बी ए, यू कैन नॉट डू दैट हियर, ऐसे कोई ऑपरेशन है मैथमेटिकल जो रियल नंबर पे नहीं लगाया जा सकता, ए बी बी ए कम्यूटेटिव करने के लिए, ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट है ये, टेल प्लीज व्हाट, तो व्हाट यू विल राइट फॉर दैट हियर, तो ये वैल्यू फंक्शन है और ये क्या है, बी ए, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, बाइजेक्टिव ऑन टू सर्जेक्टिविटी यू हैव टू चेक हियर दैट ए बी, व्हाट यू विल राइट फॉर दैट हियर, तो इफ यू विल राइट फॉर दैट हियर आप यहां ऐसा लिखेंगे कि फॉर, या फिर बी अगर आप लेते हैं, या फिर व्हाट इज द वैल्यू है दैट, ये हो गई आपकी वाई, वाई इज इक्वल टू व्हाट, जिसको हम कहते हैं ना एफ ऑफ x1, ठीक है, और x ऑफ 2, ये एक डोमेन है यहाँ पर, और ये क्या है इसका, ये भी एक रेंज है, सॉरी ये इमेज है, पता इमेज इसकी ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, इज इट, इमेज क्या है इसकी, ऑर्डर्ड पेयर है, सो फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो हियर यू विल राइट, तो वो क्लियरली अपीयर हो रहा है यहाँ पर कि फॉर ऑल y1 y2, फॉर ऑल y1 y2, है ना, जो कि क्या है, रियल, हाँ बिलोंग करता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, या फिर देयर इज नॉट अ वाई, कोई भी ऐसा वाई नहीं है, यहां ऐसा लिख सकते हैं आप, और इसे भी समझा सकते हैं, फॉर ऑल वाई, y1 एंड y2 बिलोंग्स टू r, ये लिख दिया आपने, तो व्हाट यू विल राइट डाउन द लाइन हियर कि देयर क्या, देयर इज नो वाई, क्या लिखेंगे, लिखते चलिए प्लीज, देयर इज नो वाई, देयर इज नो वाई फॉर विच, देयर इज नो वाई फॉर विच, लिखते हैं, देयर इज नो वाई फॉर विच प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई वाई नहीं है जिसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सारे वाई के लिए प्री एग्जिस्ट करती है प्री इमेज, मतलब सारे वाई की सेटिंग है डोमेन में, कोई भी वेकेंट नहीं है, इज इट हियर, तो यस इट इज सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव, दिस इज गॉट इट और नॉट,
लेट्स कम ऑन प्लीज, अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज. Similarly, the other is that ninth question number. Have a look this please. What the ninth question says? A domain set, a natural, है ना, a function on natural set be given as n plus 1 by 2 if n is odd or n by 2 if n is even. तो for all n be natural. आप ये लाइन मत देखिए अब आप बस आप और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना स्टार्ट करिए. हाउ विल यू राइट डाउन द सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव? सिमिलरली फंक्शन इज क्या गिवन है अपन को बताइए. फंक्शन फ्रॉम n टू n, इज इट? अब तो बन जाएगा ना. इज गिवन एज व्हाट? f ऑफ n इज व्हाट? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ऑब्वियसली यहां पर इस पूरे नंबर्स को, मतलब fn को, fn एक नंबर है, fn समझना थोड़ी कठिन होता है. जैसे y और यहां पर क्या होता है? f ऑफ x. तो यहाँ दो वैल्यू है, एक x और एक y. तो विल स्पीक हियर यहाँ n और यहाँ fn. तो fn क्या है बोलता है वो? fn क्या है? नेचुरल है. तो अगर मैं इस n के प्लेस पे 0 रख दूंगा, सॉरी 0 कैन नॉट बी पुट हियर. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है. यहां मैंने 2 रख दिया. क्या रख दिया? 2. तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 बाय 2. तो ये पूरी वैल्यू क्या नहीं आई? नेचुरल नहीं आई. अब आगे समझ, इसीलिए तो साफ साफ क्लियर हो रहा है. क्या क्लियर हो रहा है बताइए? कि कुछ ऐसे n है जिसके लिए वो डिफाइन नहीं होगा. इज इट और नॉट? अभी इंजेक्टिविटी चेक करिए. हाउ विल यू चेक इंजेक्टिविटी? स्टार्ट चेकिंग इंजेक्टिविटी. इंजेक्टिविटी चेक स्टार्ट करिए. n by 2. हाँ, इंजेक्टिविटी फंक्शन f, इज इट? फंक्शन f n प्लस 1 by 2, इज इट? तो फॉर n इज इक्वल टू किसके लिए कह रहा है? फॉर n इज इक्वल टू ना n बिलोंग्स टू कुछ कहा ना, n ऑड और इवन क्या? व्हाट इज इट सेइंग हियर? n is even. n is odd. फर्स्ट इज व्हाट? n इज odd. ऑड और यहाँ n इज इवन. n इज ऑड. n इज ऑड का मतलब क्या होता है? n इज n ऑड. ऑड, ये n ऑड है, इज इट? तो करें स्टार्ट, इज इट? तो ये पूरी वैल्यू को आप क्या सपोज कर लेंगे? n सपोज कर लेंगे, इज इट? तो लेट स्टार्ट चेकिंग द इंजेक्टिविटी. तो इंजेक्टिविटी में व्हाट यू विल चेक फॉर दैट? तो लेट m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये सपोज कर लिया. ये m वैल्यूज हैं, इज इट? वेयर m और n क्या है बताइए? नेचुरल है. लेकिन ये यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नहीं है. वो क्या है बताइए? वो ऑड है, इज इट? तो यू विल राइट इट. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं. हियर n इज ऑड. ऑड लिखिए. अब तो ऑड के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू, एक वैल्यू लीजिए 2m प्लस 1, 2m प्लस सॉरी 2m माइनस 1 कर लीजिए, इज इट? 2m माइनस 1. तो जस्ट पुट हियर दैट हियर. तो देयरफॉर 2m प्लस माइनस 1 प्लस 1. यहाँ से उसको fn ही लिख के आइए. आप हैबिट डालिए, मतलब उसको fn समझने की, सिंगल वैल्यू समझने की, इज इट? तो m इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू m, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट नेक्स्ट इज 1 cancels. Here will be what? 2m by 2. So 2 cancel. What is coming that? m. यहाँ पर एक m वैल्यू आ गई. Tell please, m is what coming? क्या आ गया m? m क्या आया? तो यहाँ m कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा आपको m को. तो m what can be here this m? मतलब n इवन है तो m क्या होगा यहाँ पर? m हो सकता है 1 2 3 4. देखिए प्लीज, m is what? If 1, m is 1, तो 2 1 is 2, कितना आ गया? 1. तो n ऑड हो गया. देखिए प्लीज अगेन, m is what? 2 2 2 are 4 4 minus 1 n ऑड हो गया. तो ये ऑड का फॉर्मेट है. सो फॉर n बी ऑड, व्हाट्स fn इज कमिंग? fn इज m. m क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 5. इज इट? हियर इससे क्या क्लियर हुआ होता है कि fn नेचुरल आ रहा है, इज इट? हियर सो कंक्लूजन फॉर, हियर विल राइट फॉर ऑड नंबर हो गया, फॉर n इज इवन, फॉर n इज इवन,
इज इट, ये लिखेंगे m इज नेचुरल या m बिलोंग्स टू n, क्लियर, ये लाइन देखने का अंडरलाइन, ओके। n इज इवन, n इज इवन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग n इज इवन, मतलब n इज इक्वल टू, यू विल राइट 2m, तो n इज इवन टू m क्या होगा, तो m इज इक्वल टू 1 2 3, फिर से वही कहानी, सो यू विल राइट हियर दिस fn इज इक्वल टू n by 2, यही था ना n by 2, so here you write 2m divided by 2, so 2 cancels, what will come here, m, where m is what, so here you will write that is 1 2 3 4 1 2 3 4 5, so and so on, so odd के लिए भी वैल्यूज आ रही हैं और इवन के लिए भी वैल्यूज आ रही हैं, इज इट, लेकिन एक मजेदार बात है यहाँ पर, समझिए क्या, कि यहाँ m की वैल्यू कितनी रखे थे आपने, 1, और उसके लिए एक वैल्यू आएगी यहाँ पर m, इज इट हियर, मतलब m1 के लिए व्हाट इज कमिंग हियर, इज डिफाइनिंग फंक्शन हियर, और यहाँ भी m1 के लिए भी डिफाइन कर रहा है, इज इट हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हियर, मतलब m हियर कैन बी n इज ऑड, मतलब फॉर ऑड के लिए यह आएगा और इवन के लिए ऑड और इवन मिलाएंगे तो क्या आएगा, व्हाट विल बी दैट, ऑड और इवन, मतलब हर एक हियर इट इज दिस n, ये n, हमने ये फंक्शन की चेकिंग की एक्चुअली 2m-1, मतलब ऐसी कोई वैल्यू आई जो डिफाइन नहीं हो रही है, n इज ऑड, n इज ऑड, सारे ऑड के लिए एक वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू आई बताइए, 1 2 3 4, नेचुरल कुछ ना कुछ आएगा, इसके लिए भी डिफाइन कर गया, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, m और ऑड, और यहां पर क्या था बताइए, इवन, वेयर इज दैट, ये इवन, यहां पर ऑड है, यहां पर इवन और यहां पर ऑड, इन दोनों के लिए वैल्यूज आ रही है, कौन सी वैल्यूज आ रही है, नेचुरल वैल्यू आ रही है, तो क्या वो कॉमन है दोनों के लिए, बोथ फॉर बोथ द वैल्यूज हियर, इट इज कॉमन दैट है, समझिए, m is what, m can be 1 2 3 4 5, m can be 1 2 3 4 5, is it here, तो यहां पर भी m 1 2 3 4 5 है, is it, तो ऑड के लिए यहां पर पहले ही चेक करिए कि यहां ऑड के लिए काम कर गया फंक्शन, इससे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है और मोर, इसका आसान तरीका देखिए इलस्ट्रेशन, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, तो व्हाट कैन वी टेक हियर दिस, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, चलिए ठीक, साइड वे आई एम टेलिंग यू दिस, fn is equal to what, n plus 1 by 2, तो here you will write since n is क्या, odd, and odd का नंबर क्या मतलब, that is n is equal to या तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो टेल प्लीज व्हाट अबाउट fn, तो fn रख लीजिए आप, अनदर मेथड आई एम टेलिंग यू, तो यहाँ 1 रखिए प्लीज, कितना आएगा, 2 आएगा ना, 1 plus 1 2, 2 by 2 कितना जाएगा, 1, फिर 3 रखिए प्लीज, 2 आ जाएगा, फिर 4 रखिए, 5 रखिए प्लीज, 3 आ जाएगा, फिर 7 रखिए प्लीज, 4 आ जाएगा, बोलो समझ गए कि नहीं, डॉट डॉट, हाँ, फिर उसके बाद इसको समझिएगा, इज इट हियर, नाउ अगेन fn इज इक्वल टू n by 2, किसके लिए, n is even, n is even, if n is even that is fn, बोलिए प्लीज, even means what, that is n can be 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो n के प्लेस पे क्या रखिए, 2, so 2 रखेंगे, क्या आएगा प्लीज, 1, in place of that 4 2, in place of that 6 क्या आएगा, 3, आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, now next is what, 4 5, आप समझे कि नहीं समझे, हाँ, what is the meaning of that, इसका मतलब जब 1 हम रखते हैं उसके लिए इमेज क्या आता है, तो here you will write f of 1 के लिए क्या आ रहा है, 1, और f of 2 के लिए भी क्या आ रहा है, आप वो भी बनाया ना, देखिए प्लीज, दिस इज दैट ईयर, ये समझ आएगी नहीं, तो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस ईयर, f of 1 is 1 और f of 2 is 1, वो भी 1, तो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस ईयर कि f of 1 इज इक्वल टू f of 2, बराबर है कि नहीं, देखिए, बट क्या कहेंगे आप, f of but 1 is not equal to 2, तो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस ईयर, फंक्शन क्या हो गया, ये इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिविटी नहीं है ना, समझ आया कि नहीं, इट्स नॉट इंजेक्टिव फॉर दैट, इज इट नॉट,
तो ये डिफिकल्ट क्यों लगता है, वाई दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि m का एक इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर। सालों से हम फंक्शन को एफ एक्स वाई करके ट्रीट करते हैं, हियर वी आर टेकिंग द वैल्यू mn, दैट्स वाई। तो यू कैन टेक द वैल्यूज, बोलो क्लियर और नॉट, हैव नोटेड प्लीज। सिमिलरली द, लेकिन ये मेथड आप एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे आप। तो ये वही वाली डिफिनेशन एग्जिस्ट हो गई यहाँ पर, फॉर देयर रेंज इमेजेस आर इक्वल बट डोमेन्स आर नॉट इक्वल, तो देयर इज नॉट वन वन, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बन जाएगा। छापिए मतलब आप लोग, मतलब ऐसा एक बार समझ लीजिए फिर उसके बाद भी करिएगा, इसीलिए फिर। और ऑन टू लिख लेंगे आप इसको, ऑन टू कर लेंगे, ऑन टू समझ गए ना क्या ऑन टू होगा। हाँ हाँ, इसे एफ एन कर लेंगे। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, जैसे आपने लिखा एफ एन, मतलब एक पूरी एक वैल्यू एम भी कह सकते हैं आप इसको, इज इट हियर, और हियर इट विल बी एन प्लस 1/2, तो 2 को यहाँ ट्रांसफर करिए, 2 ऑफ एफ एन, इज इट हियर, और फिर क्या बचेगा n प्लस 1, अब ये क्या आएगा 2 ऑफ एफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब n यहाँ पर क्या होगा, क्या कह रहा है n को, ऑड कह रहा है, इज इट हियर, n ऑड होगा, ऐड होगा, ऑड होगा, ऑड मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, व्हाट इट इज व्हाट हियर 2 ऑफ एफ एन इज इक्वल टू -1, तो ये 2 का मल्टीपल है, इज इट। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, इवन आएगी। क्यों इवन आएगी, है ना, तो -1, तो इवन -1 इज व्हाट, ऑड, इज इक्वल टू n, सही बात है, ऑड, यस सर। और उस वाले के लिए देखिए एफ एन इज इक्वल टू व्हाट इज दैट हियर n/2, तो व्हाट विल हियर दिस हियर, तो 2 ऑफ एफ एन इज इक्वल टू क्या होगा n, तो n इज व्हाट हियर इवन, तो ऑल इवन आ रहे दिस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये इवन और ये क्या है ऑड, मतलब ऐसा कोई एफ एन है, ऐसा कोई एफ एन है जिसकी प्री इमेज ना हो, नहीं, इज इट हियर, द आंसर इज बिफोर यू, क्या ऐसा कोई एफ एन नहीं है, हाँ, ऐसा कोई एफ एन नहीं है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, इज इट, तो लिखने का तरीका आपके सामने, ठीक, चलिए इट्स ओवर दैट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिमिलरली यू विल डू दैट हियर, रिलेशन इज गिवन हियर दैट लेट r बी रिलेशन r-3 मींस 3 इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड हियर, 3 को रखेंगे तो फंक्शन काम करना बंद कर देगा, कंसीडर द फंक्शन है टू डिफाइन बाय दैट हियर, तो यू विल जस्ट सॉल्व दैट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, 11 सॉल्व आपका असाइनमेंट होगा, ठीक, इज इट हियर, और इसके साथ ही टुमारो विल डिस्कस हियर अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इज इट हियर। तो कल जो है आप कल एक टेस्ट असेसमेंट करेंगे, इज इट हियर, एवरी संडे यू कैन गो थ्रू द टेस्ट हियर। इस बार का थोड़ा सा टेक्निक टेस्ट का चेंजेस है, आप टेस्ट कैसे जाएंगे, आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, और टेस्ट देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए पूरे 6 days विल स्टडी हियर, ठीक है, मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपने अच्छा स्टडी किया नहीं किया, इट्स ऑल दैट्स ओके, ओके, बट एवरी संडे व्हेन यू विल असेस योरसेल्फ, आपका टेस्ट परफॉर्मेंस जब अच्छा होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, पोटेंशियलाइज्ड होगा, तो मेरा और आपका दोनों का काम करना काम आएगा, इज इट यार, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। तो टेस्ट यू विल गिव सीरियसली, इज इट। तो टेस्ट के लिए ऐसे जाइएगा, वेबसाइट तो मालूम है आपको, हाँ, इस पे जाइएगा प्लीज, हाँ हाँ दोनों होगा, बहुत पेन पेपर टेस्ट तो देना पड़ेगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, इसलिए आप इस तरह से हियर इट इज दिस, ठीक है, ये चलेगा यहाँ पर, इज इट। अब इसमें ये होम, ब्लॉग, नीट, राइटी, सीटी, इसमें जाएंगे, दिख रहा है, गॉट इट। सैम्पल पेपर, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर देखना 12 का, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इज इट हियर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करेंगे, ये एंट्रेंस टेस्ट, संडे टेस्ट, जेआईटी, नीट, इनमें कुछ में नहीं जाना है, ये सब पैड है, इज इट हियर। इसमें जाइएगा संडे टेस्ट, ये संडे टेस्ट पे गया, इज इट हियर। एंड आफ्टर लॉगिंग इन संडे टेस्ट, paper page will open before you, here that, is it, ये Sunday test, well see that here Sunday test,
9th class for 10th class, 11th class, 11th class, 12th class, is it here? आप इसमें जाएंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, is it here? तो टेस्ट विल ओपन हियर दैट. अभी ओपन क्यों नहीं हुआ? हाँ, इट्स ओपनिंग हियर दैट. टुडे इज सैटरडे, इसमें ओपन दैट हियर. चलिए, इट्स नॉट ओपनिंग दैट हियर, बट एवरी संडे को ये ओपन हो जाएगा. रिपोर्ट व्यूज, बट इट इस तरह से आप वेट. Is it? When the time will reach, then this will open clearly. और उसके आप रिस्पॉन्स करिए और उसको सबमिट कर दीजिए. इज इट? तो दिस, हाँ, अभी क्वेश्चंस, योर चैप्टर सिलेबस हैज बिगन, so you just not have learned all the topic will some basic or advanced topic is also there, but the question will be included in advanced way. तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी आप करेंगे, इज इट? स्टडी में जो दिया उसमें कंप्लीट है. जेईई मेंस के क्वेश्चन एट द लास्ट हैव बीन गिवन दिस, उनकी प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं बनते तो यू आस्क देम हियर. इज इट हियर? Got it? Thank you very much. Have a nice day. Your assignment as I have given that.